Good morning, students. Today's topic is calendar. Okay, it's a very interesting topic, and you will learn a lot of new things from this particular topic. Okay, calendar नाम सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या नया सीखने जैसा है. We know all about calendars that there is 1 year, 12 months, 365 days. There is a leap year. So what is new which we don't know about the calendar? Okay, so आप आज बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द जनरल लाइक यू शुड नो दिस ऑल दिस थिंग्स अबाउट द calendar. So what is basically a calendar? Calendar is nothing but a system of organizing days. Okay. अच्छा, क्या आप सबको पता है that the calendar which we currently follow, it is what is the name of that calendar? Okay, the calendar which we follow is calendar that called as Gregorian calendar. Okay, उसके पहले था Julian calendar and this particular calendar, Gregorian calendar, it replaced the Julian calendar. So पहले तो कैलेंडर के बारे में बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो आप सबको पता है वो एक बार देख लेते हैं. वी नो दैट कि in 1 year there are 365 days and there are 12 months. 1 week is equal to 7 days. ठीक है. अच्छा, ये 1 डे जो होता है वी नो दैट इन अ ईयर देयर आर 365 डेज. सो ये एक दिन क्या होता है बेसिकली, ये एक दिन 1 डे विच इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये बनता कैसे है? व्हाट, व्हाई देयर इज 1 डे, व्हाई देयर आर 365 डेज, व्हाट इज 1 ईयर? सो वी ऑल नो दैट कि अर्थ जो है हमारी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, करेक्ट, एंड इट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. तो सपोज ये जो है ये सन है. Okay, suppose this is the sun, ऐसा, and this is earth, and this is earth. So this earth it rotates around the sun. ऐसे earth जो है वो rotate करती है, and earth also rotates on its axis. ये axis थोड़ा ठीक से बनाते हैं. Earth also rotates on its axis. So the time taken by the earth for one rotation, this is called one rotation. When the earth rotates on its axis, the time taken by the earth to rotate on its axis, that time is equal to 1 day. ये 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए और वहां से बन जाता है 1 डे. सिमिलरली अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन. And Earth takes approximately 365 days. Actually, this is not 365, it's more than 365, but Earth takes approximately 365 days and plus 6 hours. For it takes 365 days and 6 hours to rotate, to revolve around the sun, and hence one revolution will take 1 year. So इसको यहाँ से हमने बना दिया 1 year. So we can say that 1 year is equal to 365 days. ठीक है, इसीलिए एक साल में 365 days होते हैं. Now we also know about the leap year. We know that in a leap year there are not 365 days. Leap year has one extra day, and hence we know कि leap year is 366 days. So first of all, let us understand कि ये leap year होता क्यों है? Why there is a leap year? What is the need of the leap year? So as I told you that Earth जो है it takes 365 days plus 6 hours for one revolution. Okay, तो ये जो 6 hours extra है ये हमने तो consider नहीं किया है, and this 6 hours is not such a short time कि जिसे आप ignore कर सके. तो first year ये 6 hours extra हो गया, next year 6 hours extra हो गया, next year 6 hours, तो हर साल 6 hours extra हो रहे, and after 4 years it will become 24 आवर्स. ठीक है, तो 4 साल के बाद ये जो 6 आवर्स मिला के 24 आवर्स हो गए हैं. ठीक है, सो ये 24 आवर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. वी नो दैट 24 आवर इक्वल्स टू 1 डे. तो दिस 24 आवर्स नीड्स टू बी एडजस्टेड एंड हैंस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर. तो इसीलिए 4 साल में एक दिन एडजस्ट करना पड़ता है, एक दिन एक्स्ट्रा डालना है, सो दैट टाइम की कोई गड़बड़ ना हो, and hence we get leap year after every 4 years. So this is the concept of leap year. ठीक है. So
if it is a normal year, we know that there are 365 days, and if it is a leap year, we know that there are 366 days. So this one day which is extra in the leap year, वो कौन से मंथ में एग्जिस्ट होता है? सो वी नो दैट इट्स वी एग्जिस्ट दैट इन द मंथ ऑफ February. So normal year, for a normal year, February month has 28 days, whereas in case of a leap year, February month has 29 days. ठीक है, तो इतना पता हमें है, ये तो हमको सबको पता है कि वन ईयर में 365 डेज होते हैं. अच्छा, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन दोस 365 डेज? तो अगर हम 365, वी नो दैट इन वन वीक देयर आर 7 डेज. तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज 5, 35, 1, 15, 2, 14 and 1. So from this I can say that 365 days में can I say that there are 52 weeks and plus ये remainder आ गया, that is 1 day extra. So normal year में there are 52 weeks and plus 1 day. Whereas in case of leap year, since there is 1 day extra, so leap year has 52 weeks and 2 days extra. ठीक है. नाउ ये जो पूरा चैप्टर है कैलेंडर का, ये पूरा चैप्टर इस एक्स्ट्रा डे के ऊपर चलता है. एवरीवेयर वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या होता है कि सपोज फर्स्ट डे of a year, for an example, if I say that suppose 1st January 2023, suppose this particular day is Monday. 1st January 2023 is a Monday. Then next year जो आएगा, that is 1st January 2024, it would not be Monday. वो Monday नहीं होगा. अगर 52 weeks होते तो वो मंडे का मंडे होता, बट हियर इट इज 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, सो इट विल बिकम द नेक्स्ट डे इज ट्यूसडे. सो इफ द 1st January 2023 is Monday, 1st January 2024 it would be Tuesday. वो बनेगा ट्यूसडे वाला दिन. इसका मतलब क्या होगा कि सपोज आपका बर्थडे, इस बार आपका बर्थडे आ रहा है सपोज मंडे को, तो नेक्स्ट ईयर आपका बर्थडे आएगा ट्यूसडे को इफ इट इज अ नॉर्मल ईयर. और अगर वही लीप ईयर होता तो आपका जो बर्थडे है वो ट्यूसडे की जगह पे वेडनेसडे को आता. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज योर बर्थडे कम्स ऑन 1st January को. 1st January को आपका बर्थडे आता है एंड दैट डे इज संडे. तो 1st January को 1st January 2023 को मान लो कि संडे था. तो 1st January 2024 को कौन सा दिन आ जाएगा? वी नो दैट कि दिस इज नॉट अ लीप ईयर. बीच में कोई भी ऐसा महीना नहीं आ रहा है वेर इन February मंथ इज 29 डेज. ये नहीं बन रहा है. सो द नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली द सेम डेट, द डे वुड बी मंडे. एक साल के बाद संडे का मंडे हो गया. लेकिन मान के चलो कि सपोज आपका जो बर्थडे है वो बर्थडे जो है आपका वो इस दिन को आ रहा है कि 1st March 2023 को. 1st March 2023 को योर बर्थडे इज कमिंग, ओके, एंड दैट डे वाज मंडे. तो 1st March 2024 को कौन सा दिन बनेगा? क्या वो मंडे बनेगा या फिर ट्यूसडे बनेगा या फिर वेडनेसडे बनेगा? मंडे तो नहीं बनेगा. परफेक्ट, क्योंकि एक दिन तो एक्स्ट्रा होते. बट हियर वी आल्सो नीड टू सी कि क्या ये लीप ईयर बन रहा है. सो आप देखोगे 2024 इज अ लीप ईयर. नाउ हाउ टू फाइंड द लीप ईयर दैट वी विल सी, आगे देखते हैं. बट 2024 इज अ लीप ईयर. और ये देख रहे हो कि हम मार्च से मार्च जा रहे हैं, तो बीच में फेब्रुआरी मंथ आने वाला है. एंड दिस फेब्रुआरी मंथ हैज 29 days. So if your birthday is coming on 1st March 2023 which was Monday, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपका बर्थडे 2024 को ट्यूसडे को नहीं आएगा. नाउ देयर आर 2 days एक्स्ट्रा, सो इट वुड फॉल ऑन वेडनेसडे. ठीक है. So if it is a leap year, we know that there are 52 weeks and 2 days extra. ठीक है. So यहाँ से हमने क्या देखा कि 1st January 2023 को मंडे आ रहा है,
तो 1 जनवरी 2024 को ट्यूसडे होगा। अगर 1 जनवरी 2024 तो उसके पहले वाला दिन कौन सा होगा? हमें पता है कि 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर आता है। So if 1 January 2024 is Tuesday, can I say that 31st December 2023 वो भी मंडे ही होगा, एक दिन पहले? From this, can I say that कि first day of a year is equal to the last day of the same year. मतलब 1 जनवरी को जो दिन आ रहा है, सेम डे 31st दिसंबर भी सेम डे को ही आएगा, if it is a normal year. ठीक है? Whereas in case of a leap year, okay, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 1 जनवरी 2020, now 2020 is a leap year, और ये जो है ये मंडे आ रहा है। सो 1 जनवरी 2021 वुड बी वेडनेसडे। मंडे का वेडनेसडे क्यों हो गया? बिकॉज नाउ देर आर 2 days एक्स्ट्रा, तो मंडे में 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, सो इट विल बिकम वेडनेसडे। एंड सिंस 1 January 2021 is coming on Wednesday, the day before this, which is 31st December 2020, would fall on Tuesday. सो यहां से हमने क्या देखा कि एक साल के बाद एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आ जाता है इफ इट इज अ लीप ईयर, एंड इफ इट इज अ नॉर्मल ईयर, एंड इफ इट इज अ लीप ईयर तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा करने हैं, एंड इफ इट इज अ नॉर्मल ईयर देन फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर एंड द लास्ट डे ऑफ अ ईयर इज इक्वल, एंड इफ इट इज अ लीप ईयर तो जो लास्ट डे ऑफ अ ईयर होगा वो फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर में आपको एक ऐड करना है। ठीक है? नाउ कब से हम लीप ईयर की बात करें, सो लेट्स सी। एज आई टोल्ड यू, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया लीप ईयर का कि लीप ईयर होता क्यों है। वो टाइम एग्जिस्ट करने के लिए, वो 6 आवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक लीप ईयर डालते हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट लीप ईयर कम्स एवरी 4 years। तो अगर मुझे जानना है कि कोई भी वेदर अ पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, सो हाउ डू वी डू दैट? फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे जानना है कि 2023 क्या ये लीप ईयर है या नहीं, so what we need to do, we need to divide this number by 4 and we have to check क्या ये properly divide हो रहा है। if it is completely divisible then I can say that the year is a leap year। तो 4 का रूल क्या कहता है? the divisibility rule of 4 says that we need to concentrate only on the last 2 digit। तो आगे का ये digit भूल जाओ, just check whether 23 by 4 is this possible। क्या 23 is divisible by 4? So no, 23 is not divisible by 4 because हम 23 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिमाइंडर आता है। Okay, so this is not completely divisible and hence I can say that year 2023 is not a leap year। Similarly, if I want to see whether 2024 is a leap year or not, तो क्या करेंगे? पूरे को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट के ये जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करके चेक करें। वी नो दैट 24 by 4 is 6, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, एंड हेंस आई कैन से दैट द ईयर 2024 इज अ लीप ईयर। सो इफ आई वांट टू चेक whether a year is a leap year or not, then I have to divide it by 4, but this is a half truth। ये हमने स्कूल में सीखा था। पूरी सच बात ये है कि a year is a leap year if it is a non-century year then it should be divisible by 4, but if it is a century year then it should be divisible by 400। तो दो चीज होती है, एक है नॉन सेंचुरी ईयर, एक है सेंचुरी ईयर। इफ इट इज अ नॉन सेंचुरी ईयर तो अपना स्टैंडर्ड मेथड डिवाइड बाय 4 करके चेक करना है, but if it is a century year then it should be divisible by 400। For an example, 1900, if I want to check whether this particular year is a leap year or not, तो कैसे चेक करेंगे? इसको 4 से नहीं डिवाइड करेंगे because this is a century year। 2000, 2100, 1900, 1800, these are all century years। So whether all these years are leap year or not, उसको चेक करने के लिए we have to divide it by 400। अभी आप देखो 19 by 4 पॉसिबल नहीं है, so I can say that 1900 वाला जो ईयर है it is not a leap year। ठीक है? So here some examples are given।
1952, 2008, 1680 are the leap years. Why they are leap years? Because 52 is divisible by 4, 8 is divisible by 4, and 80 is also divisible by 4. Whereas 1991, 2003 are not leap years. Why they are not leap years? Because ये 4 से divide नहीं हो रहे हैं. आप इसको 4 से divide नहीं कर सकते. Now you can see here that 400, 800, 1200 these are all century years. तो ये leap year है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? So this years we need to divide by 400. So 400 by 400 is equal to 1. Divide हो रहा है. So this is a leap year. Similarly, 800 and 1200 is also divisible by 400. So these are all leap years. Whereas you can see that 100, 200, 1900 these are not leap years, because if you divide them by 400 they are not completely divisible. तो इसका ख्याल रखिए कि ये सब साल जो है ये भी लीप ईयर नहीं है. ठीक है. Now tell me the answer of this. Which of the, let's solve this particular question, which of the following are leap years? So you can see here that the first option 2024, since this is a non century year इसको हम 4 से divide करेंगे. So 24 by 4 completely divide हो रहा है. So this one is a leap year. 24, अगर 24 लीप ईयर है तो उसके पहले वाला साल तो डेफिनेटली लीप ईयर नहीं ही होगा. So 23 by 4 not possible. So this one is not a leap year. 1800 if I want to check. So since this is a century year उसको हमें 400 से डिवाइड करके चेक करना है. 18 by 4 नहीं हो रहा है. So this is not a leap year. 2000 once again this is a century year. So this we will divide it by 400. 20 by 4 is possible. So this is a leap year. So from this 4 years, I can say that these two are leap years, A and D. ठीक है. कुछ basic questions करते हैं. First question. January 1, 2007 was Monday. What day of the week lies on Jan 1, 2008? तो Jan 1, 2007 का डे दे दिया गया है मंडे, और इसी को रेफरेंस बना के यू नीड टू फाइंड कि भाई Jan 1, 2008 को कौन सा दिन होगा. So you can see here that this is the situation of exactly after 1 year. So exactly after 1 year we know that कि पहले तो हमें ये चेक करना है whether इसमें लीप ईयर वाला आ रहा है या नहीं. So 2008 is a leap year. This is confirmed. लेकिन इसमें February month नहीं आ रहा है because we are going from Jan to Jan. So Feb 2008 this month is not coming. So we will consider this as a normal year. Correct? This is not a leap year. This is a normal year. And in a normal year we know that one day is extra. तो Monday का बन जाएगा Tuesday. So Tuesday is the answer. This is the correct answer. Option number B. ठीक है. Go to the next one. On Feb 2006 it was Tuesday. What was the day of the week on 8 Feb 2005? अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम उल्टा जा रहे हैं. 2006 का डेट इज गिवन, 8 Feb 2006 का डेट इज गिवन, एंड वी हैव टू कम, पीछे आना है, एक साल पीछे आना है. वंस अगेन वी नीड टू सी क्या ये कोई लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है. सो 2005 एंड 2006 बोथ आर अ नॉर्मल ईयर. तो इसमें तो दूर दूर तक लीप ईयर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों साल लीप ईयर है ही नहीं. सो दिस इज अ केस ऑफ अ नॉर्मल ईयर, एंड इन नॉर्मल ईयर वी नो दैट देयर इज वन डे एक्स्ट्रा. इसका मतलब है कि अगर ये वाला दिन ट्यूसडे है तो एक साल पहले कौन सा हो जाएगा. सो वी हैव टू कम वन डे बिफोर बिकॉज हम उल्टा जा रहे हैं. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मंडे. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट वन. On 8th Feb 2005 it was Tuesday. What was the day of the week on 8th Feb 2004? Once again आप देख रहे हो यहाँ पर
द डेट इज सेम 8th Feb 2005 का 2004 हो गया है, मतलब एक साल पीछे जाना है आपको। वंस अगेन वी नीड टू सी क्या ये लीप ईयर वाला ईयर है क्या है। सो आप देखोगे यहाँ पर दैट 2005 इज नॉट अ लीप ईयर बट 2004 इज अ लीप ईयर। और इसमें क्या फेब्रुआरी 2004 आ रहा है, बिकॉज ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है ये फेब्रुआरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। Yes, we know that February is coming here and hence this is a case of a leap year. Okay, so we know that in a leap year there are 2 extra days. Extra days 2 होते हैं, तो हमें 2 दिन पीछे आ जाना है। तो ट्यूसडे में से 2 दिन पीछे आ जाएंगे, तो ट्यूसडे का मंडे, मंडे का संडे। सो आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज संडे। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि ये लीप ईयर वाला ईयर है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी डेज आर देयर इन x वीक्स x डेज? तो आपके पास x वीक्स है एंड x डेज है, सो हाउ मेनी डेज आर देयर? Now before we solve this question, let's take one simple example. For an example, if I ask you that how many days are there in wait. How many days are there in 5 weeks 4 days? हाँ, तो 5 weeks और 4 days में कितने दिन होंगे? तो आप क्या करोगे? We know that कि in 5 weeks there are 5 into 7 that is equal to 35 days. Why? Because 1 week has 7 days और plus 4 days और है, so total there are 39 days. ठीक है, ऐसा बनेगा। The same thing we have to do here also. For x लिखा है 5 और numbers की जगह पे x is written. Okay, so we'll do the same thing now. What we will do here is x week है, तो x week में कितने दिन बनेंगे? So can I say in x week there are 7 x days और plus x days तो है ही, so plus x. So 7x plus 8x will give you 8x. So answer is option B, that is 8x. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। x को देख के घबराना नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दैट, सॉरी, all are century years. Normal year नहीं है, these are all are century years. So to see whether the leap year is not a leap year, in case of a century year we have to divide it by 400. तो सबको 400 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, so this is not a leap year. 800 by 400 divisible है, so this is a leap year. This is 1200 by 400, this is also a leap year, and 2000 by 400 it is completely divisible, so this is also a leap year. So first option is, this is not a leap year. वैसे ये सब चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिंस यहाँ पर आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका था, तो आप your answer is option A, that is 700. Now, as I told you, this particular chapter is full of extra days. Every day, everywhere you need to find the extra days, and accordingly you have to solve the question. Now, we know that in a normal year, number of extra days is 1. If it is a leap year, number of extra days is 2. Now, let's see what happens in 100 years. 100 years के बाद number of extra days कितने होंगे? तो we know that in 100 years, 100 years में कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे? तो उसके लिए हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू 25. बट वी नो दैट ये जो लास्ट वाला 100 सेंचुरी ईयर जो होगा, बिकॉज इट इज 100, सो दिस इज नॉट अ लीप ईयर. सो बेसिकली हियर इन दिस 100 years, if I say 100 years में बेसिकली आपको 25 लीप ईयर्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 24 लीप ईयर्स. 24 लीप ईयर्स होंगे एंड हैंस देयर वुड बी 76 नॉर्मल ईयर्स. मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 5 कैसे आया है. एग्जाम में ये सब सॉल्व नहीं करना, एग्जाम में आपको इसको रट्टा मारना है, ठीक है. नाउ
there are 24 leap years. In 100 years, there are 24 leap years and there are 76 normal years. Okay, we know that in one leap year, there are 2 extra days. So in 24 leap year, there are 24 into 2, that's equal to 48 extra days. एंड 76 जो नॉर्मल ईयर है उसमें 76 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। सो 48 प्लस 76 करेंगे तो 8 प्लस 6 14, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड दिस इज 124। ओके, सो 124 इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। लेकिन हमारे जो एक्स्ट्रा डेज है ना, हमें उसकी वैल्यू जो है ना वो 0 to 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0 to 6। व्हाई? बिकॉज इन अ वीक देर आर ओनली 7 डेज। तो आप 124 एक्स्ट्रा डेज नहीं मान सकते। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम 124 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। सो 1 7 5 54 7 49 remainder is 5. So actually the number of extra days is 5. Why? Because 124 days को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that 124 days is equal to 17 week plus 5 days. तो 124 ये तो पूरे हो गए ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं है। सो 124 में देर आर 5 एक्स्ट्रा डेज। सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट इन अ 100 ईयर देर आर 5 एक्स्ट्रा डेज। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आर 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? मतलब आप सोच रहे हो कि इसका यूज क्या है। तो जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि 1 जनवरी 1700 को, ओके, 1 जनवरी 1700 को अगर मंडे होता है तो 1 जनवरी 1800 को कौन सा दिन होगा? तो देखो कितने साल का गैप हो रहा है यहाँ पर। यू कैन सी दैट द गैप इज ऑफ 100 इयर्स। तो 100 इयर्स में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आर 5। तो आपको क्या करना है? मंडे प्लस 5 कर देना है। मंडे प्लस 5 करेंगे तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो आंसर विल बिकम सैटरडे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज से आंसर निकालना है, ठीक है। सो ये आप मार दो रट्टा, ताकि एग्जाम में आपको ये सब करने का टाइम नहीं होता। सो यू हैव टू मग अप दिस दैट इन 100 years there are 5 extra days. Now in 200 years how many extra days? तो आप देखो कि 100 years में 5 एक्स्ट्रा दिन है। So can I say in 200 years 5 into 2 that is 10 extra days? But as I told you कि ये 10 जो है this value number of extra day की value it should be between 0 to 6। तो इसको हम वापस एक बार 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। So here the number of extra days are 3. Similarly 300 years में, so in 100 years 5 extra days. So 300 years में 5 into 3 that is 15 extra days. But extra days 0 to 6 ही होता है। तो once again बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 15 divided by 7 if we do, we'll get the remainder as 1. Everywhere you have to concentrate on the remainder because remainder is the one which is giving you extra. Remainder का मतलब क्या होता है? Something which is extra. So 300 has 1 extra days. 300 years has 1 extra day. And similarly 400 years में आप देखोगे तो we know that in 100 year there are 5 extra days. So 400 years में 5 into 4 20 extra days हो जाएंगे। But अभी क्योंकि 400 साल खत्म हो गए हैं तो ये वाला एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक दिन लीप ईयर के लिए डालना पड़ेगा। तो दिस इज 21 डेज। वंस अगेन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो इन 400 years देयर आर नो एक्स्ट्रा डेज। इसको एटलीस्ट आपको ये रट्टा मार दो दैट 100 year हैज 5 एक्स्ट्रा डेज। तो आप उसके बाद 203 301 400 0 ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। Now let's come to the month कि मंथ में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। तो वी नो दैट जनवरी मंथ हैज 31 डेज। ये आप सबको आई बिलीव पता है दैट व्हिच मंथ हैज हाउ मेनी डेज। वी हैड स्टडीड इन द स्कूल। ये याद है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये ऐसे ही हम याद रखते थे, राइट? सो जैन मंथ हैज 31 डेज। सो हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज इट हैज? वंस अगेन क्या करेंगे? कोई भी नंबर में से एक्स्ट्रा डे निकालना है तो उसे डिवाइड बाय 7 करेंगे and we will see that what is the remainder. So if I do 31 divided by 7 I get the remainder as 3 or
और वो ही एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, ठीक है। Now, if it is a normal year, we know that February month has 28 days. So 28 by 7, if we'll do, the number of extra days is 0. Actually, ये leap year का लिखा है. This is for a normal year, it is 0. And if it is a leap year, we know that there are 29 days. So 29 by 7. So here, the number of extra days would be 1. Okay. So if it's a normal year, then February month has no extra day. And if it is a leap year, then February month has 1 extra day. Similarly, March has once again 31 days, so 3 extra. 30 could divide by 7, so remainder is 2, so 2 extra days. May has 31 days, so 3 extra days. June के पास 2 extra दिन है. July has 3 extra. August has 3 extra. September month has 2 extra days. October has 3, November has 2, and December has 3 extra days. ठीक है. ये आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, ये तो आप आराम से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं. Now, the next concept is the repetition of calendar. ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार एक साल का कैलेंडर है ना, वो रिपीट होता है कुछ सालों के बाद. एग्जैक्टली सेम कैलेंडर होता है, एग्जैक्टली सेम. मतलब आप ये साल का कैलेंडर देखो या ये साल का कैलेंडर देखो, all the days, dates सब मैच करेंगे एक दूसरे से properly. So that is called the repetition of calendar. Now, this is also one thing which you need to mug up, that if it is a leap year, then leap year repeats after every 28 years. For an example, अगर 2004, we know that 2004 is a leap year, right? This is a leap year. So 2004 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा? So it will get repeated after 28 years, मतलब 2032. So 2004 का कैलेंडर is equivalent to 2032 का कैलेंडर. ये दोनों कैलेंडर exactly same दिखेंगे because leap year का कैलेंडर repeats after every 28 years. If it is a year like leap year plus 1, then that particular calendar repeats after every 6 years. If it is a leap year plus 2, then that calendar repeats after every 11 years. And if it is leap year plus 3, then that calendar also gets repeated after every 11 years. इसको रट्टा मार दो. तो एक एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज इट इज 2020 का. सो वी नीड टू सी कि ये कौन सा वाला साल है. तो पहले तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं. 20 by 4 डिवाइड हो रहा है. सो दिस इज अ लीप ईयर. सो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? सो वी नो दैट दिस कैलेंडर इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर 28 years. So answer is 2020 plus 28. So ये कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा पहली बार. उसके बाद वापस और 28 एवरी 20 years इज गोइंग टू रिपीट. बट 2020 के बाद सीधा 2048 में ये कैलेंडर रिपीट होगा. अब इफ इट इज 2021, तो क्या है ये? कैन आई से दिस इज नथिंग बट लीप ईयर के बाद वाला साल. सो दिस इज नथिंग बट लीप ईयर प्लस 1. करेक्ट. सो लीप ईयर प्लस 1 का फॉर्मेट क्या है? इट इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर एवरी 6 years. सो 2021 का कैलेंडर 2021 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2027 में रिपीट होगा. उसके बाद कब रिपीट होगा? तो 2027 प्लस 6 मतलब 2033 में रिपीट होगा. इट्स लाइक दैट. ओके, दिस इज हाउ इट विल गेट रिपीटेड. 2022, कैन आई से दिस इज नथिंग बट लीप ईयर के बाद दूसरा वाला साल है. दिस इज लीप ईयर प्लस 2. सो दिस पर्टिकुलर कैलेंडर रिपीट्स आफ्टर एवरी 11 years. सो 2022 का कैलेंडर विल गेट रिपीटेड इन 2022 प्लस 11 is 33. तो 2033 में ये कैलेंडर रिपीट होगा. Similarly, 2023, we know that this is nothing but leap year plus 3. So this calendar also gets repeated after 11 years. So this calendar now will repeat in 2034. ठीक है. So इस टाइप के क्वेश्चन सीधा सीधा आते हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा वाला साल है ये, whether it is leap year or leap year plus 1 or 2 or 3, and accordingly you have to add. ठीक है. 28, 6, 11, 11. Now let's solve this particular question. Calendar for the year 2007 will be same for which year? तो 2007 का कैलेंडर कौन से वाले साल के बरोबर होगा? So 2007, पहले तो ये देखना है कि ये कौन सा वाला साल है. ठीक है. So इसके लिए क्या करेंगे हम?
वी हैव टू टेक ओनली दिस 07, तो 07 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट लीप ईयर प्लस 3 वाला ईयर है, लीप ईयर प्लस 3। ठीक है, सो लीप ईयर प्लस 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट दिस पर्टिकुलर कैलेंडर गेट्स रिपीटेड आफ्टर 11 इयर्स। सो 2007 में 11 ऐड कर दो, सो इट विल बिकम 2018। 2018 इज द आंसर। ठीक है, first now let's go to the next question. It was Sunday on Jan 1, 2006. What was the day of the week on Jan 1, 2010? Jan 6 से Jan 2010 में हमें जाना है। तो आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट जैन, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट जैन, तो डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने साल का जंप मारना है, सो फ्रॉम 2006 वी हैव टू गो टू 2010। तो 6 से 7 की ओर जाना है, then from 7 to 8 we have to go, then 8 to 9 we have to go, and then 9 to 10 we have to go. ठीक है, we know that in 1 year, if it is a normal year, it has got 1 extra day, and if it is a leap year, it has got 2 extra days. ठीक है, तो 6 to 7 we know that 2006 2007 both are normal years, so यहाँ पर extra days 1 है, here I am writing extra days। 2007 to 2008, now we know that 2008 is a leap year, so we have to be careful, okay, since they are talking about Jan, so Jan 7 से लेके Jan 8 में कहीं पर भी February 8 नहीं आता है, February 2008, so here the number of extra days is 1। now from Jan 2008 to Jan 2009, इसके बीच में February 2008 पड़ने वाला है, so this one is a leap year, so this has 2 extra days, and this has once again 1 extra days, so the total number of extra days is 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संडे में 5 ऐड कर देना है, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम 6 to 10, तो संडे प्लस 5, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सो आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन दो डेट के बीच का यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, दैट्स इट। ओके, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज देयर, सी दे हैव गिवन यू अ पर्टिकुलर डेट, और उस डेट के सामने एक डे लिखा है, देन दे विल गिव यू सम अदर डेट एंड दे विल फाइंड यू द डे कि भाई उसका दिन क्या होगा, सो फ्रॉम दिस इज योर रेफरेंस, इसको आपको रेफरेंस मार के ये वाला आंसर निकालना है। ओके, सो यू हैव टू बिलीव दैट फर्स्ट जन 2006 संडे ही था। ठीक है, नेक्स्ट, Piku was born on 6th March 1993. The same year, Independence Day was celebrated on Friday. Find out the birthday of Piku. तो भाई पीकू को जो है उसका बर्थडे आता है 6 मार्च को, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है फ्राइडे को, तो यू नीड टू फाइंड कि पीकू का जो बर्थडे था वो कौन से दिन आया था। नाउ वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है वो तो पता होगा, तो 15th अगस्त, वी नो इंडिपेंडेंस डे गेट्स सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August, और ये वाला दिन फ्राइडे था, तो आपको उल्टा जाना है, अगस्त से मार्च की ओर जाना है, पहले जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कि भाई 6th मार्च और 18th अगस्त के बीच में कितने एक्स्ट्रा डेज है, कैसे निकालेंगे देखिए। सी, एक है कि आपको 6th मार्च से 6th अप्रैल जाना है, फिर 6th अप्रैल से 6th मई जाना है, देन 6th मई टू 6 जून जाना है, फिर 6 जून से 6 जुलाई जाना है, फिर 6 जुलाई से 6 अगस्त जाना है। ठीक है, और फिर 6 अगस्त से 15th अगस्त जाना है। ठीक है, ये पूरा पाथ है हमारा, मार्च से अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, एंड फ्रॉम 6th अगस्त टू 15th अगस्त। ठीक है, चलिए, तो ये कौन से महीने की बात हो रही है, मार्च मंथ की बात हो रही है, 6 मार्च से 6 अप्रैल, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मार्च मंथ। ठीक है, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मई, दिस इज जून,
दिस इज जुलाई, और ये 6 से लेके 15 में एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, तो 6 से लेके 15 में प्लस 9 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी देखते हैं मार्च मंथ में वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, बस यही काम है कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकालना है। So number of extra days. We know that in March month there are 3 extra days. In April there are 2 extra days. May में 3 extra days. June has 2 extra days. July has 3 extra days and plus this 9 extra days. इन सबको ऐड कर दें. So 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 3 13 and 13 plus 9 22. So we have number of extra days is equal to 22. बहुत बड़ा नंबर है, एज आई टोल्ड यू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज ऑलवेज बिटवीन 0 to 6, तो इसको एक बार 7 से और डिवाइड करेंगे। ओके, तो 22/7 रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सो वी नो दैट रिमाइंडर इज 1, मतलब नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 1। ठीक है, बट ट्विस्ट क्या है कहानी में कि भाई ये बात हो रही है अगस्त की, जाना है मार्च में, तो पीछे वाले की डेट दी है, आगे वाले की ओर जाना है, तो फ्राइडे का सैटरडे नहीं करेंगे हम, फ्राइडे का करेंगे थर्सडे। एक दिन पीछे आना है क्योंकि पहले वाली डेट निकालनी है, सॉरी पहले वाला डे निकालना है, सो आंसर इज थर्सडे। ठीक है, नेक्स्ट, द डे बिफोर यस्टरडे was Tuesday, the day after tomorrow will be। तो क्या करेंगे, पहले तो हम आज की दुनिया में आ जाते हैं प्रेजेंट, सपोज ये प्रेजेंट वाला है, क्या लिखा है, द डे बिफोर यस्टरडे, सो दिस इज यस्टरडे एंड दिस इज डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, ये वाला दिन ट्यूसडे था, सो कैन आई से यस्टरडे वेडनेसडे हो जाएगा एंड प्रेजेंट डे टुडे का डेट इज थर्सडे। ठीक है, सो क्वेश्चन इज द डे आफ्टर टुमारो, तो प्रेजेंट के बाद ये टुमारो है एंड टुमारो के बाद आ जाता है डे आफ्टर टुमारो, so this is Thursday, so this is Friday and this has to be Saturday, so from this can I say that the day after tomorrow will be Saturday। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप मेंटली भी कर सकते हो कि भाई डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, तो आज हो जाएगा थर्सडे, तो कल फ्राइडे, नेक्स्ट डे सैटरडे, दिस इज हाउ यू कैन डू मेंटली आल्सो, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट then instead of getting the wrong answer better है कि आप ऐसा कुछ लिखे and get the correct answer। otherwise this question can be done mentally, कुछ भी लिखे बगैर भी हो सकता है। next, question number 10, India's Republic Day in 1996 fell on Friday, which week day it will be celebrated in 2000। सो भाई रिपब्लिक डे जो है ये तो हमें पता है दैट इट कम्स ऑन 26 जनवरी, तो 96 वाले साल में इट वाज ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन इज कि जब 2000 में हम यही साल सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 2000, सो ये कौन सा दिन होगा, विच डे इट वुड बी, दैट इज अ क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें 96 से 2000 मतलब 4 साल का जंप लगाना है। कितने साल का जंप लगाना है, 4 साल का। ठीक है, तो वी हैव टू गो फ्रॉम 96 टू 97, फिर 97 टू 98, देन 98 टू 99 एंड देन 99 टू 2000, ऐसे जंप मारना। सो 96 टू 97, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ये देखना है कि भाई लीप ईयर कौन सा है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सो we know that 1996 is a leap year, कैसे चेक करेंगे, 96 by 4 डिविजिबल हो रहा है, so 96 was a leap year, क्योंकि जनवरी मंथ है, सो ये फरवरी 96 इसी में आएगा, सो दिस इज अ लीप ईयर वाला ईयर, सो हियर द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, हियर वी राइट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज वुड बी 2 because this is a leap year। 97 to 98 now these are all normal years। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, तो ये सब नॉर्मल ईयर ही बनेंगे, this is 2 plus 1 plus 1 plus 1, so this is total, it is 5, so number of extra days is 5। तो 96 में भाई फ्राइडे को आया था, तो 2000 में क्या आएगा, कैन आई से इट इज नथिंग बट फ्राइडे प्लस 5, सो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वेडनेसडे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ठीक है, बेसिकली आप देख रहे हो पूरा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज का खेल है ये। ठीक है,
नेक्स्ट मार्च 27th March 2011 was संडे, तो आपको निकालना है 27th June 2011। अच्छी बात यह है कि दोनों का डेट सेम है, आपको सिर्फ और 2001 ही है और सिर्फ दिक्कत है महीने में, दिस इज मार्च एंड दिस इज जून, तो मार्च से लेके जून का जंप मरवाना है। सो वी हैव टू गो फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, देन अप्रैल टू मे, देन मे टू जून, ऐसे जाना है। ठीक है, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मे, मे टू जून। ठीक है, नाउ मार्च मंथ में वी नो दैट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज is equal to 3. April month में number of extra days is 2 and May month number of extra days is 3. 3 plus 2, 3 plus 3 plus 2, it's 8. So number of extra days is 8. ठीक है, ठीक है, तो number of extra days is 8. तो बट क्योंकि 8 नहीं चलेगा तो इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो number of extra days is 1. संडे का बन जाएगा मंडे, number of extra days is 1, so Sunday will become Monday. So answer is D. Next. Reaching a place of appointment on Friday, I found that I was 2 days earlier than the scheduled day. ठीक है, तो हमें एक जगह पे जाना था, अपॉइंटमेंट था हमारा और हम पहुंच गए फ्राइडे को। कब पहुंचे हम पहुंचे फ्राइडे को, इस दिन को हम पहुंच गए। एंड देन वी रियलाइज दैट वी वर 2 days अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डे। 2 दिन जल्दी पहुंच गए। इट मीन्स कैन आई से दैट द अपॉइंटमेंट का जो दिन था दैट वाज नॉट फ्राइडे एंड इट वाज नॉट सैटरडे आल्सो, इट वाज संडे, क्योंकि हम 2 दिन जल्दी पहुंचे थे। तो ये दिस इज एक्चुअली द शेड्यूल्ड डे। On this particular day the appointment was scheduled. Now question is, if I had reached on the following Wednesday, मतलब मैं फ्राइडे की जगह पे नेक्स्ट वाले वेडनेसडे को अगर हम पहुंचते, following Wednesday means next वाला Wednesday, coming Wednesday, then how many days would I have been late? मतलब अपॉइंटमेंट था संडे का एंड यू रीच्ड ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे, सो बीच में कितने लोग आ गए? मंडे ट्यूसडे, सो हाउ मेनी डेज यू आर लेट? 1 2 एंड 3 days लेट। तो जितना पहुंचना था उससे 3 दिन लेट पहुंचे हम। ठीक है, आई बिलीव यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट, today is Monday, after 61 days it will be what? बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, सीधा सीधा, इसमें कोई झंझट नहीं है। सीधा 61 डेज बोला है तो 61 डेज को डिवाइड बाय 7 कर दो एंड फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो 61 डिवाइडेड बाय 7 इट विल डू, so this is 856 and we know that the number of extra days are 5. This is nothing but the number of extra days. तो आज मंडे है तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आर 5, so मंडे प्लस 5, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Friday, Saturday. So answer is Saturday. बहुत easy question. What you need to do? You have to just divide it by 7. See the remainder कितना है और उसे add कर देना. Now, let's come to the new concept that find a day from any particular date without any reference. तो अभी तक हमने जो भी questions किए थे, well you can see कि एक particular date आपको दिया था और उसका आपको डे बताया गया था, then another date is given to you and you need to find the day using this information. Now अभी ये वाले जो questions होंगे, in that they won't give you anything, they will simply give you a date and they will tell you कि भाई इस particular date को कौन सा दिन आ रहा है। For an example, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई आप बताओ कि 15th August 1947 when we got independence, which day it was? Simple, 15th August 1947 को कौन सा दिन था निकाले। या फिर टुडे, द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, टुडे का आज का जो दिन है दैट इज 1st December 2023 and today it is Friday, so I have to prove कि भाई आज वाला जो दिन है that is
Actually, it's Friday. It's coming on Friday. No reference. Okay. So to solve such type of question, there are two ways. One is a concept and one is a trick. Both has its pros and cons. कॉन्सेप्ट की अच्छी बात यह है कि कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, इट्स प्योर कॉन्सेप्ट, सो नो रट्टा एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी मगअप नहीं करना है. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो यू विल गेट द आंसर, बट दैट विल टेक टाइम. लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम जाएगा. सेकंड इज अ ट्रिक. ट्रिक में अच्छी बात है कि बहुत जल्दी आंसर आता है, मिस्टेक की चांसेस कम है, बट हाँ बहुत सारी चीजें रट्टा मारनी है. उसके लिए कुछ टेबल्स है, कुछ कोड है, कुछ मंथ का कोड है, ईयर का कोड है, दैट यू नीड टू मग अप. सो whatever way you are comfortable, I will explain you both the method. ट्रिक से कम टाइम जाता है, चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी, कुछ कुछ वैल्यूज है विच यू नीड टू मग अप, एंड सेकंड इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि भाई आज का जो दिन है दैट इज 1 दिसंबर 2023. मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये दिन को फ्राइडे आ रहा है. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. So for that, just see, if I am explaining the concept, let me, और ट्रिक भी जो है ये कॉन्सेप्ट से ही बन के आई है, ऐसा तो है नहीं कि ट्रिक आसमान से गिरी है अब हमारे लिए. So let's understand the concept of this Gregorian calendar, the calendar which we are following, उसका concept देखते हैं. Okay, so let's see कि ये एक particular date है. Can you all imagine this particular date? क्या डेट है ये? दिस इज 1 January एंड द ईयर इज 001. सो यू कैन से दिस वाज द फर्स्ट डे. जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना था तो उसका ये फर्स्ट डे उन्होंने ये माना होगा. सो दिस द डे वाज मंडे. कौन सा दिन था? इस वाले दिन को मंडे था. So from this can I say that कि इसके पहले वाला जो दिन होगा that is 31st December 0000, it would have been Sunday. Okay, ठीक है. हमें पता है कि 400 साल के बाद नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 0. एवरी 400 इयर्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं वो 0 होते हैं. ठीक है. सो इफ 1 January 001 वाज मंडे, ये कंफर्म है, इस दिन मंडे ही था. सो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट कि 1 January 401 ये वाला जो साल बना होगा उस दिन मंडे होगा. सो इसके पहले वाला जो दिन 1 January के पहले हमें पता है कि 31 दिसंबर आता है. सो 31 दिसंबर 400 वाले दिन को मंडे की जगह पे संडे होगा, पहले वाला दिन है तो. एंड वी नो दैट एवरी 400 इयर्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 0. तो 400 साल में अगर संडे आ रहा है तो आफ्टर 400 इयर्स ऑल्सो इट वुड बी संडे. उसके और 400 साल के बाद भी संडे ही होगा. ऐसे करते करते ये सभी साल में संडे होगा. ठीक है. सो 31 दिसंबर 2000, हो सकता है आप में से कुछ लोग तभी बॉर्न भी नहीं हुए होंगे, इस पर्टिकुलर डे को संडे था. आप कैलेंडर चेक करके, मोबाइल के कैलेंडर को चेक करके देख सकते हो, संडे ही था उस दिन. ठीक है, इसी को हमें कॉन्सेप्ट बनाना है. ठीक है. सो हियर वी विल कंसीडर संडे एज 0. व्हेन आई गेट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज एज 0, आई विल कंसीडर कि ये संडे था. दिस इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज. ये दिन का कोड है, यहाँ पर मैंने डेज लिखे हैं. सिमिलरली इफ संडे को हम फर्स्ट डे मानेंगे, सो वी विल कंसीडर द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 0. मंडे का एक्स्ट्रा दिन 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6. तो संडे को 0 मानेंगे और बाकी को इस तरह से मानेंगे. ठीक है. नाउ ऑल्सो वी नो दैट कि इन 400 years द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 0. 300 years में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1, 200 years में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 3 एंड 100 years में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 5. ये भी हमने देख लिया था, इसको हमने प्रूव भी कर दिया था. सो यू नीड टू फाइंड द डे ऑफ टुडे. आज का दिन. तो आज का दिन जैसे मैंने बताया, द डे ऑन विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस डे इज 1 December 2023. कौन सा दिन होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले साल में जाएंगे, 2000 वाले साल में. हमें पता है कि 31 December 2000 was a Sunday and the Sunday has number of extra days that is 0. संडे को हमने 0 माना, तो इसको हम रेफरेंस बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, इस वाले दिन और इस वाले दिन में क्या फर्क है? हम कितने साल आगे आ गए हैं? तो हम 2023 ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने आया है. इट मींस वी हैव कंप्लीटेड 22 years.
22 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। सो इस 22 ईयर्स को हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट यू विल डू, सिंस वी हैव कंप्लीटेड 22 ईयर्स, सो हियर वी विल राइट 22, ठीक है। 2000 के बाद 23 आने के लिए हमने 22 ईयर्स पूरे खत्म किए हैं, और 23rd ईयर है विच इज करंटली विच इज गोइंग ऑन, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, स्टिल 1 मंथ इज देयर, ठीक है। अच्छा, इस 22 ईयर्स में वी नो दैट कि लीप ईयर कितने आए होंगे। सो 22 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22 डिवाइड बाय 4 करेंगे। 22 डिवाइड बाय 4 इज 5, 20। सो लीप ईयर जो है ना वो 5 आए होंगे। कितने आए होंगे? 5। सो दैट आल्सो वी विल राइट हियर, ओके। अभी हम कहां तक पहुंचे ना, हम यहां तक पहुंच गए हैं, हम यहां तक पहुंच गए 31 दिसंबर 22 तक पहुंच गए हैं। यहां से लेके हमें यहां तक आना है, यहां से लेके यहां तक आना है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस इज 31 दिसंबर 2022। तो यहां के बाद आएगा एक जान मंथ आएगा, जान 23 आएगा, फिर फेब 23 आएगा, फिर मार्च 23 आएगा, देन अप्रैल 23, मई 23, जून 23, जुलाई 23, अगस्त 23, सितंबर 23, October 23 plus November 23 and plus this is the first day of December. So एक दिन और जोड़ना है, इतने को हमें ऐड करना है, okay. So what we will do here, we'll write here this is nothing but 22 plus 5, that's equal to 27, plus Jan month में number of extra days is 3. Now this is Feb 23. Feb 23 means it's a regular year, so this is 28 days, so number of extra days is 0. March में number of extra days is 3. April has 2 extra days, May has 3 extra days, June has 2 extra days, July has 3 extra days, August has 3 extra days, September has 2 extra days, October has 3 extra days, November has 2 extra days, plus December का एक दिन। इन सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 plus 3 30, 33, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 53, 54. So number of extra days is 54 days. इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5 का, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे एक्चुअली एक्स्ट्रा डेज बन गए, ठीक है। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है कि 5 मीन्स फ्राइडे, तो आ गया ना आज का दिन फ्राइडे, ठीक है। आज का दिन क्या हो गया, फ्राइडे वाला दिन हो गया। दूसरा मेथड, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई इतना सब क्यों किया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, पूरा जैन से स्टार्ट करके दिसंबर तक गए, क्योंकि ये दिसंबर मंथ था ना, तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा हम पीछे चले जाते, हम ये वाला दिन निकाल लेते। हमें ये निकालना है ना 1 दिसंबर 2023, तो हम ये नहीं निकालते, हम ये दिन, ये वाला दिन निकालते 31 दिसंबर 2023, ताकि ये सब ना करना पड़े। सो हाउ वी कुड हैव डन दिस, सो हियर वी नो दैट कि 2023 minus 2000, so number of years are 23, so we will start with 23, उसमें लीप ईयर होंगे 5, ठीक है। अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचे हम, 31 दिसंबर 2023 में पहुंचे, यहाँ से हमें यहाँ आना है 1 दिसंबर 2023, so 31 minus 1, so it is 30 number of extra days, ठीक है। तो वो 30 क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें पीछे जाना है, इतना पीछे आना है, ठीक है। सो हियर दिस इज 23 plus 5 28, ओके दिस इज 28, ठीक है। और उसमें से हमें 30 माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि इतना हम पीछे आ रहे हैं। सो 28 minus 30 दैट्स इक्वल टू -2। -2 मतलब कैन आई से दिस इज नथिंग बट -2 मतलब -2, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डेज -2 तो नहीं होंगे, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, so this will become 5. So 5 is the number of extra days. This is the number of extra days. So the answer 5 represent करता है Friday को. So answer is Friday. ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा।
यहाँ पर मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि हम 31 से उल्टा जा रहे हैं, 1 की ओर बढ़ रहे हैं, सो इसीलिए मैंने किया है माइनस। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना था, सो बट दिस इज कंफ्यूजिंग, इसमें गलती होने के चांस है। नाउ लेट्स कम टू द ट्रिक। आई पर्सनली बिलीव कि कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, क्योंकि ट्रिक में चीजें रट्टा मारनी है। क्या क्या रट्टा मारना है, तो हियर इन केस ऑफ ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर द कोड ऑफ ऑल द मंथ्स। सिंस देयर आर 12 मंथ्स, सो आपको वो 12 के 12 महीनों के कोड याद रखने हैं। कोड क्या है, 033614625 दिस इज द कोड। ये कोड है 033614625 इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो कि भाई ये 033 है, एंड में 035 है, बीच में 614625 है। So code of January is 0, February का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल 6, May 1, June 4, July 6, August 2, September 5, October 0, November 3, December 5। तो ये हमने कोड याद कर लिए। इसको रट्टा मारना है। रट्टा मारने का मैंने तरीका बताया, आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई पहले 033 है, एंड में 035 है, बीच में 614625। इसको कोड को अगर आपने रट्टा मार लिया तो बहुत फिर काम आसान। नेक्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर द कोड ऑफ द ईयर ऑल्सो। जैसे कि 1600 टू 1699 इसके बीच के अगर कोई साल के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका कोड ऑफ द ईयर 6 होगा। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द ईयर विच इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज, सो यू हैव टू पुट द कोड ऑफ ईयर एज 4। इसका कोड ये, इसका कोड ये। अच्छी बात ये है कि ज्यादातर केस में वो इसी डेट को पूछेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आपको पूछेगा कि भाई 1 जनवरी 1701 को कौन सा दिन था, कम चांस है। डेफिनेटली जो करंट सिनारियो है, करंट जो सिचुएशन है, उसी के हिसाब से अभी यही डेट्स चलती है तो इसके बारे में ज्यादा पूछेंगे। सो दिस यू नीड टू मग अप कि भाई 1900 टू 1999 द कोड ऑफ द ईयर इज 0, एंड फ्रॉम 2000 टू 2099 द कोड ऑफ द ईयर इज 6। ठीक है, so once again using this particular trick now we will solve the same question कि भाई जैसे कि आज वाला दिन है 1 दिसंबर 2023। इस दिन को जैसे हमने ऊपर देखा है कि इस दिन को फ्राइडे आ रहा है। लेट्स सी कि with the help of trick are we getting the same answer। ठीक है, क्या करना है देखिए, इसमें डे ऑफ अ मंथ, मंथ का डे लिखना है। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है, करंटली दिसंबर मंथ इज गोइंग ऑन और उसका फर्स्ट डे है। तो आई विल राइट द डे एज 1 बिकॉज पहली तारीख है ना, जो भी तारीख है वो लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यू नीड टू राइट द कोड ऑफ द मंथ। नाउ दिस इज दिसंबर मंथ दे आर टॉकिंग अबाउट, तो दिसंबर का कोड आपको पता होना चाहिए कि भाई दिसंबर का कोड 5 है। सो दैट यू हैव टू राइट दैट कोड ऑफ द मंथ इज 5। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द टोटल इयर्स। टोटल इयर्स, क्योंकि ये देखो 2023 कौन सी वाली रेंज में है, कैन आई से इट इज इन दिस रेंज 2000 टू 2099। सो हम इसमें से टोटल नंबर ऑफ इयर्स निकालेंगे। सो करंटली 2023 इज गोइंग ऑन, उसमें से 2000 कैंसिल कर देंगे। सो 23 इयर्स वी विल राइट, दिस इज 23। ठीक है, टोटल इयर्स क्या लिखेंगे इस रेंज का, 22023 माइनस 2000। व्हाई, बिकॉज हमने इस वाली रेंज को पकड़ा है, इसको पकड़ा है, because 2023 falls in this range। You need to find the number of leap years। 23 में कितने leap years होंगे, कैसे निकालोगे, तो 23 by 4 करेंगे। So this is 5 and this is 23। So ये क्वोशंट होगा, ये आपका लीप ईयर बनेगा। भाई इतने लीप ईयर आए हैं, लास्ट के 23 सालों में 5 लीप ईयर आए हैं। So that you will write 5। Next you need to write the code of the year। Now we know that the code of the year is 6। इसको हमने कर दिया, बस इसको ऐड कर दीजिए। क्या किया, डे ऑफ अ मंथ वी हैव रिटन दिस एज 1, कोड ऑफ द मंथ हमने लिखा 5, टोटल नंबर ऑफ इयर्स हमने लिखे 23। ठीक है, उसमें से लीप ईयर जो थे वो हमने लिखे 5, एंड कोड ऑफ द ईयर हमने लिखा 6। एड ऑल दिस थिंग। ठीक है, सो 1 + 5 6, 6 + 6 12। ठीक है, 12 + 5 17 and 17 + 23। So 17 + 23 is 40। So this is nothing but your number of extra days।
नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। वंस अगेन 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर आ जाएगा 5, सो योर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 5। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है कि 5 इज नथिंग बट फ्राइडे, बिकॉज हमने संडे को 0 माना है, करेक्ट। यहाँ पर हमने देखा था दैट, वापस एक बार बता देती हूँ, फ्राइडे रिप्रेजेंट्स 5, ठीक है। सो आंसर आ गया फ्राइडे। So as I told you, this question can be solved using concept and using trick. Trick में अच्छी बात ये है कि आपको इतना ही याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कोड ऑफ द मंथ एंड कोड ऑफ द ईयर। कोड ऑफ द ईयर वंस अगेन इट इज सिंपल, क्योंकि यही साल ज्यादा पूछा जाएगा, मैक्स टू मैक्स ये वाला साल के बारे में पूछे जाएंगे। ओके, सो दिस कोड इज 0 and 6. I will solve some questions based on this. What was the day of the week on 17th June 1998? तो आपको एक डेट दिया गया है एंड यू नीड टू फाइंड कि भाई उस दिन कौन सा दिन आ रहा था। ओके, सो हियर once again we'll use the same thing. First we will write the day of the month. So day of the month is 17, so we will write 17. Next we will write the कोड ऑफ द मंथ। तो जून का कोड आपको पता होना चाहिए, आपको एक बार बता देते हैं कि जून का कोड क्या था। तो जून मंथ का जो कोड था दैट इज 4, सो दैट यू विल राइट एज 4, ठीक है। देन यू नीड टू राइट द नंबर ऑफ ईयर्स। अभी देखो नंबर ऑफ ईयर्स, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 1998, तो हमें 1900 से ये वाला रेंज पकड़ना है, ठीक है। सो 1998 माइनस 1900, तो कितने साल है ये, 1998 ईयर्स, ठीक है। इस 98 ईयर्स में यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स। सो 98 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे, सो इट इज इक्वल टू 98 बाय 7, तो ये 14 से डिवाइड हो रहा है। सो नंबर ऑफ सॉरी 98 डिवाइडेड बाय 4 करना है, नॉट 7, ठीक है। सो कितने लीप ईयर्स होंगे, दिस इज 2, दिस इज 8, 1, 18, 4, सो 24 लीप ईयर्स होंगे। इन 98 ईयर्स देयर आर 24 लीप ईयर्स, सो वो हमने लिख दिया, ठीक है। देन इन द एंड यू नीड टू राइट द कोड ऑफ दिस। तो इसका हमें कोड पता है कि इसका कोड 0 है, कोड ऑफ द ईयर इज 0। अभी इन सबको ऐड करो, देखो देयर आर टू वेज, फर्स्ट यू इधर यू ऐड देम। अब ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, इसको कौन ऐड करेगा, सो व्हाट वी विल डू, हम सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं बड़े बड़े नंबर्स को, एंड यहाँ से ही हम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकाल देंगे, यहाँ से ही हम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। तो 17 by 7, so here I know that the number of extra days is 3, remainder is 3, here it is 4, 98 by 7 तो properly divide हो जाता है, so no remainder, and 24 by 7 the remainder is 3, so the total it is 10, so once again 10 by 7 करेंगे, so it is 3 जो है, so number of extra days is 3, ये फाइनल आंसर आ गया। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 represents Wednesday, so आंसर इज वेडनेसडे। आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हो, 17 जून 1998 को वेडनेसडे ही आता है, ठीक है, वही आएगा। So this is how you can solve the question. Next question. On what dates of April 2001 did Wednesday fall? So April month 2001 में कौन कौन से दिन वेडनेसडे आया था। Now we know that Wednesday comes after every 7 days, लेकिन फर्स्ट वेडनेसडे कब आया था वो तो निकालना पड़ेगा। सो हियर यू कैन सी द ऑप्शन, हियर इट इज रिटन कि वेडनेसडे इज कमिंग ऑन 1st of April, हियर इट इज रिटन इट्स कमिंग ऑन 2nd, हियर इट इज 3rd एंड हियर इट इज 4th। तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि भाई अप्रैल 2001 में जब वेडनेसडे पहली बार आया था तो इट वाज ऑन विच पर्टिकुलर डेट। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला निकालते हैं कि भाई 1st अप्रैल 2001 को, 1st अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। 1st अप्रैल देखते हैं पहले कि भाई 1st अप्रैल को कौन सा दिन बन रहा था। सो वंस अगेन फॉर दिस वी विल यूज द ट्रिक ओनली। फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इज द डे। तो डे कौन सा है, 1st अप्रैल। देन वी हैव टू राइट द कोड ऑफ द मंथ अप्रैल। तो अप्रैल का कोड क्या है, सो इट इज 0336, सो कोड ऑफ अप्रैल इज 6, ठीक है। देन यू नीड टू राइट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स।
नाउ सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट 2001, तो हम कौन सी वाली रेंज पकड़ेंगे? वी विल टेक दिस रेंज 2000 टू 2099। कितने साल है 2000 से 2001 में? एक ही साल है, और एक ही साल है तो उसमें लीप ईयर तो आएगा नहीं, सो दिस इज 1 एंड द कोड ऑफ दिस इज 6। इसका हमें पता है कि ये साल का कोड जो है वो है 6। So it is 6, 1 plus 6 plus 1 plus 6. So this is nothing but 14. This is nothing but 14. ठीक है? So 14 by 7 if I'll do, so number of odd days are 14. So 14 by 7 if I'll do, then it is 0. So number of extra days is 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2001 को नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज विद 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 रिप्रेजेंट संडे। तो उस दिन संडे था, 1 अप्रैल 2001 को वॉज संडे। तो आप सोचो कि 1 अप्रैल को अगर संडे आ रहा है तो वेडनेसडे कब आएगा? कैन आई से वेडनेसडे 3 दिन के बाद आएगा। सो सेकंड को मंडे विल कम, थर्ड को ट्यूसडे विल कम एंड वेडनेसडे विल कम ऑन 4th। सो फर्स्ट वेडनेसडे विल फॉल ऑन 4th। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा प्लस 7 डेज के बाद। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा ऑन 18th एंड द नेक्स्ट वेडनेसडे विल कम ऑन 25th। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, आप महीने की पहली जो तारीख है उसका कौन सा दिन आ रहा था वो निकालें एंड फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द आंसर। Okay, so I hope you have understood this particular chapter, last part of the chapter. अभी तक आपने जो भी किया मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। This is very interesting, last day of a century। कि भाई जब सेंचुरी वाले ईयर की हम बात करते हैं तो उसका लास्ट डे क्या होगा? जैसे कि एज आई टोल्ड यू सेंचुरी इयर्स आर दोज इयर्स लाइक 1900, 1800, 2000, 2100, these are called century years. Now what could be the last day of a century? So जैसे हमें पता है कि भाई 31 दिसंबर 2000 को संडे था, ये हमने आगे प्रूफ भी कर दिया कि दिस पर्टिकुलर डे वाज संडे। सो एग्जैक्टली आफ्टर 100 years कौन सा दिन होगा? सो वी नो दैट इन 100 years द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 5। 100 years में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 5। सो कैन आई से द 2100 में 31 दिसंबर को द डे वाज संडे प्लस 5 दैट्स इक्वल टू फ्राइडे। सिमिलरली 2200 उसके और 100 साल के बाद we know that in 200 years number of extra days is 3। तो संडे प्लस 3 वेडनेसडे आएगा। आप कैलेंडर देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर दिन को फ्राइडे ही दिखेगा। और आज से 2200 साल मींस अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 177 इयर्स जो दिन आएगा दैट वुड बी वेडनेसडे and 31st 12 2300, so after 300 years we know that number of extra days is 1, so Sunday plus 1 that's equal to Monday। once again 31st December 2400 को once again ये 400 साल के बाद है। 400 साल के बाद क्या होगा? we know that कि 400 years के बाद number of extra days 0 होते हैं, तो वापस संडे ही आएगा। तो फ्रॉम दिस, और यही पैटर्न चलता रहेगा, संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, यही पैटर्न चलता रहेगा। सो फ्रॉम दिस कैन आई से कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन बी संडे or it can be Friday or it can be Wednesday or it can be Monday। So the last day of a century इन चारों दिन में से ही एक हो सकता है। So from this I can say that last day of a century cannot be, can I say कि last day of a century cannot be Tuesday nor it can be Thursday nor it can be Saturday। इसको रट्टा कैसे मारोगे? देखो आप ऐसे रट्टा मार सकते हो, इसकी ट्रिक बता देती हूँ। We know that this is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। अच्छा हम थोड़ा इसको थोड़ा मैं चेंज करते हैं, दिस आई विल राइट लाइक दिस। हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, सो मंडे और यहाँ पर हम लिख देंगे संडे, ऐसे लिखते हैं। मंडे से स्टार्ट करेंगे संडे तक जाएंगे। सो दिस डे इज अ, इस डे को लीप ईयर सॉरी इस डे, दिस डे कुड बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। Similarly, this could be the last day of a century. Similarly, this could be the last day of a century. Similarly, this could be the last day of a century। ये जो तीन बीच में लोग हैं, this three particular days can't be the century day, मतलब the century won't fall on this day। तो alternate है ऐसे,
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे को सेंचुरी ईयर कैन कम एंड अदर डेज सेंचुरी ईयर कैन नॉट कम। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं दैट लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता? तो हमें पता है कि ये 3 दिन में से कोई एक होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। सो आंसर इज ट्यूसडे। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, इट कैन कम ऑन संडे, इट कैन कम ऑन फ्राइडे, इट कैन कम ऑन वेडनेसडे, बट इट कैन नॉट कम ऑन ट्यूसडे। तो ये ट्रिक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको ऊपर कि क्यों ऐसा है, व्हाई इट इज संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे, एंड आई आल्सो शोन यू द ट्रिक कि भाई आप कैसे उसे रट्टा मारो। So with this, we are ending today's topic, that's calendar. I hope all of you have understood this particular topic. ठीक है?